मतलब क्या होता है, सोप इज हाइयर हाइड्रोकार्बन C17H35 COONA, ये है फॉर्मूला सोप का. ओके, प्लस if I use my water which is containing calcium or magnesium salts. So you need to take in your mind that hardness in water is majorly due to calcium and magnesium salts, है ना. तो क्या होता है कि ये सोप जो है, सोप का फॉर्मूला आप देख लो, सोडियम सॉल्ट आपको दिख रहा है of higher hydrocarbon. So here this is the soap, and if you treat it with the water which is containing calcium and magnesium ions, means I can say let us say it is a hard water, then what can happen to this, that it will form C17H35. Now here it is minus and here it is plus, whereas calcium is a divalent cation, isn't it? So what will happen when it reacts, calcium when it is reacting with this, here what will be the product, COO. Now twice calcium की जो वैलेंसी है वो इधर आ जाएगी. ओके, COO twice बराबर है, and here you will have calcium ion plus Na. This will be the reaction. So what has happened, that there is a formation of precipitate. Precipitate is formed, isn't it? I will show it by down arrow. I hope everyone knows this. This is the precipitate form, and therefore we see white stain. वो जो हम दाग दिखते हैं ना हमको, वो जो दाग है वो किसके वजह से है, ये precipitate के वजह से है. Okay, so this is a reaction of soap with the water containing calcium or magnesium salt, that it forms a precipitate. Okay, and it is not balanced. Now the reaction, if you can see, it is not balanced. यहाँ पे अगर twice है, यहाँ पे अगर twice है तो हमें भी यहाँ पे twice करना पड़ेगा, बराबर है. Okay, but here twice Na है तो हमें यहाँ twice Na करना पड़ेगा. I hope the reaction is clear for you. यहाँ पे divalent है, calcium divalent है और COO माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम की वैलेंसी यहाँ पे देनी पड़ेगी ट्वाइस, बराबर है, और इसकी जो वैलेंसी वो कैल्शियम पे आने वाली. So that's why this product is formed. Okay, so once this precipitate is formed, we can conclude that this is a hard water. But the same thing, same reaction which we do with the soft water, what will happen? This type of precipitate will not be formed. Precipitate is not expected to form, rather what is formed then? The question come in our mind, what is formed then? Then there is a formation of a foam or a soft lather. हम बोलते हैं ना झाग बनता है ना. So whenever there is a formation of soft lather or a foam, then we can call it as a soft water. So my definitions are very, very simple. Hard water is a water which forms precipitate with the soap solution. Okay, and soft water is a water which forms soft lather with the soap solution instead of precipitate. Okay, I hope anybody is having any problem in understanding of this concept. Let us just wait, if you can put in the chat box. We also have crystalline water. Okay. Crystalline का क्या होता है बेटा? Crystals are generally soluble in water, so we do not have to see. ये जो salts है ना, ये जो salts के वजह से, basically salts के वजह से water becomes hard. This should be the conclusion for your part. Am I clear about it? I will once again tell you. Just tell me in the chat box whether you are getting this point or not. Water is identified into two types. One is called as soft water and the second one is called as hard water. Okay, लेकिन ये identification हमें करना कैसे है? उसके लिए क्या होता है कि whenever water is treated with the soap solution, soap के साथ अगर हमने उसको treat किया,
तो क्या होता है, उसका प्रेसिपिटेट बनता है. ओके, एंड इफ द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, देन वी कैन कंक्लूड दैट इट इज अ हार्ड वाटर. बट इफ द प्रेसिपिटेट इज नॉट फॉर्म, प्रेसिपिटेट नहीं, एकदम सॉफ्ट ऐसा फोम बन गया, लेदर बन गया, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ सॉफ्ट वाटर. ओके, हम जब whenever we wash our clothes, we see the foam is formed. Okay, it indicates that it is a soft water. Okay, अरे कुछ आंसर नहीं है चैट बॉक्स में. शुड आई मूव अहेड और नॉट? एम आई क्लियर अबाउट इट? रिएक्शन सबको समझिए क्या? देखो, ठीक है, रिएक्शन देखो कैसी है कि सोप को हमने क्या कर दिया, हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया और फिर उसका प्रेसिपिटेट बन गया. हाँ, वही मुझे लग रहा है. देखो, ये मैंने सोप लिखा है. रविंद्र, आई हैव रिटन हियर. प्रिया, अच्छा, ओके, आई हैव रिटन द फॉर्मूला ऑफ अ सोप. तो सोप क्या होता है? तो ये हरदम ये सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. तो लॉन्ग चेन का मतलब क्या है? C17H35COO माइनस Na+. ये है सोप. अब सोप को मैंने जब हार्ड वाटर से मिक्स किया ना, तो क्या हो जाता है, उससे ऐसे प्रेसिपिटेट बनता है. तो प्रेसिपिटेट के लिए ये अभी डाइवेलेंट है. क्या आई एम गोइंग टू गिव सम एग्जांपल. तो क्या होता है कि ये जो है, ये डाइवेलेंट कटायन यहाँ पे जाता है, तो लेकिन वैलेंसी कैल्शियम की इसकी इधर जाने वाली है, बराबर है. और कैल्शियम के पास कौन सी वैलेंसी आने वाली है? ये COO माइनस की. तो दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट आपको ध्यान से देखना है. प्रोडक्ट इज विच वन? C17H35COO ट्वाइस एंड देन Ca. ये बराबर देखो, ये ऐसे प्रेसिपिटेट बनता है और उसके वजह से हम सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So many students are saying that they want some examples for hard water. हाँ, examples तो बहुत है. Let us first go ahead with this. अभी मैं आगे जाने वाला. I'm going to share this notes with you, so you need not have to worry. पर थोड़ा ध्यान दो अच्छे से, so that it is clear for you. Now the next topic is types of hardness. अभी ये बहुत से बोल रहे थे ना बच्चे कि हार्ड वाटर कौन सा होता है. तो उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा types of hardness. Okay, now what is types? Why, how can you say types? Types इसके वजह से हम बोल रहे हैं कि number of salts are in different number. More and more salts are there. So depending on which salt is present in the water, depending on which salt is there in the water, we are going to call it as either temporary hardness of water, or we are calling it as permanent hardness. I think I have written down the other type is permanent hardness. So basically, depending upon the type of salt present, we have two types of hardness. One is known as temporary hardness, and the second one is known as permanent hardness. Now my question comes in my mind, what is the problem with the salt? ये salt के वजह से दो टाइप के हार्डनेस कैसे आ रहा है? देखो क्या होता है कि if the hardness in the water, I have written the definition, hardness in water if it is due to presence of carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium. ये अगर salt वहां पे पानी में है तो ये क्या करते हैं? ये टेम्पररी हार्डनेस देते हैं. ये वर्ड टेम्पररी क्यों यूज किया है? बिकॉज हार्डनेस इन वाटर इज रिमूव्ड बाय नियर बॉइलिंग प्रोसेस. ये परमानेंटली हार्ड वाटर नहीं है. अगर आप इस पानी को बॉईल करोगे ना, जनरली हमारे घर में अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ बुखार आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग सबसे पहले जो रेमेडियल एक्शन लेते हैं ना घर में, इट इज ऑलवेज बॉइलिंग, isn't it? तो हाँ, तो सब एक ने आंसर दिया कि कोई प्रोसेस से आप रिमूव करते होगे, इसके वजह से आप टेम्पररी बोल रहे हैं. बराबर, प्रोसेस हम सिंपल कर रहे हैं, बस उस वाटर को बॉईल कर रहे हैं. बॉईल करने के बाद क्या होता है? लेकिन ऐसा बॉईल करने के बाद हार्डनेस निकल जाता है, ऐसे कैसे? तो लेट अस सी नाउ. पहले मैं आपको ये सॉल्ट दिखाऊंगी जिसके वजह से टेम्पररी हार्डनेस आता है. तो आई हैव रिटन हियर एग्जाम्पल्स
of the salt which will give temporary hardness. देखो मेरे definition में मैंने क्या लिखा हुआ है, carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium. So I will write it as CaCO3. Carbonate हो गया. अभी bicarbonate, sorry, carbonates and bicarbonates, isn't it? So I will write it bicarbonate of calcium. Okay, magnesium carbonate and magnesium bicarbonate, है ना सिंपल. तो ये चार सॉल्ट जो है ये always gives temporary hardness to the water. Some of the students are saying जब बॉईल करते हैं तो वो हाँ, एक स्टूडेंट का आंसर ऐसा है कि बॉईल करने के बाद वो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. वैसा नहीं होता है, जरा देखते हैं अभी हम कैसे. एक एग्जाम्पल लेंगे हम. देखो ये आपको क्लियर हो गया क्या? Can hard also called? Yes, definitely. See, Omkar, hard water is the impure water. That's what हम स्टडी डीप में कर रहे हैं. इसका सॉल्ट के वजह से जो इम्प्योरिटी आ रही है ना, उसकी डीप स्टडी हो रही है, क्योंकि हम रोज हमारे डे टू डे लाइफ में वही पानी पीते रहते हैं ना, तो उसको ही टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखो अभी whenever this salts, carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium, ये चार सॉल्ट अगर पानी में है, what they do, they give temporary hardness. तो आप बोलोगे ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप मैडम कि टेम्पररी हार्डनेस देंगे वो. चलो अभी क्या मैंने बोला है कि अगर इस वाटर को मैंने बॉईल किया तो क्या होता है. So on boiling, what happens? See, I will write the reaction. This calcium bicarbonate get decomposed. So to some of the extent, one of the students who has answered is correct. CaCO3 decomposition होता है plus H2O plus CO2. Okay, so this is what is the reaction which is happening, and this is CaCO3 is a precipitate. It is not soluble in the water. तो हमारा काम जम गया. अभी कैसे क्या जम गया? ये जो पानी में पहले डिसॉल्व था ना, ये सॉल्ट हमें नहीं दिख रहा था. जब हमने बॉईल किया तो क्या हो गया? it gets converted into precipitate. अब precipitate तो मुझे बहुत इजी है, फिल्टर कर लो. इस पानी को अगर मैंने फिल्टर कर लिया तो मेरा तो सॉल्ट निकल गया, isn't it? Plus H2 and CO2 is no problem at all. Okay, so I hope you got my point. पहले ये सॉल्ट सोल्यूबल था, जब मैंने उसको हीट किया तो इनसोल्यूबल हो गया. अब जब इनसोल्यूबल हो गया तो मैंने क्या कर दिया? I have precipitated out. अरे मैंने उसको निकाल ही दिया फिल्टर करके, मेरा काम हो गया. तो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है, ये अभी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मैडम ने लिख दिया, अभी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का भी वैसा ही हो रहा है क्या? चलो देखिए क्या होता है. हाँ, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का एक प्रॉब्लम होता है. मैग्नीशियम इज अ लिटिल बिट बेसिक इन नेचर. तो क्या करता है वो, मैग्नीशियम कार्बोनेट होना चाहिए ना, जैसे अपने ऊपर की रिएक्शन लिखी है वैसे ही नीचे भी होनी चाहिए. पर ये क्या करता है, ये it doesn't form magnesium carbonate, rather it forms magnesium hydroxide, MgOH twice plus CO2. Okay, again this is a precipitate. Magnesium hydroxide is a precipitate and which can be removed by mere boiling process. Okay, so here now you will find that the reaction is a little bit imbalanced because ऑक्सीजन देखो 6 है यहाँ पे ट्वाइस है, तो ये 2 और 2, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बैलेंस इट विथ ट्वाइस. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, सो ये जनरली क्या होता है, व्हेन द pH इज ग्रेटर देन 7 फॉर वाटर and if this salt is there, it will definitely form magnesium hydroxide. तो आप पूछोगे कि अगर pH कम है तो, in that case, if the pH is less than 7, in that aspect, it will not go for magnesium hydroxide, it will favor for magnesium carbonate. जैसे हमने ऊपर रिएक्शन लिखी है वैसे ही रिएक्शन हमें यहाँ पे आने वाली. Only this reaction is applicable whenever the pH is greater than 7. So let me conclude this point. Temporary hardness is the hardness due to presence of salts
which salts? Carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium. Why do we call it as temporary? Because this hardness we can remove by boiling process. What happens if we boil this water? These salts, which are initially in a soluble state, on heating get decomposed to form insoluble salt. क्या होता है? It becomes insoluble, they form precipitate, and if you get a precipitate, then what we can do? A simple option is to just filter out this water. So I hope it is clear for everyone. The second point is permanent hardness. What is permanent hardness? Hardness in water which is due to salts like sulfates. I hope you can see on the screen, sulfates, chlorides, nitrates of calcium and magnesium. So if the salts other than carbonates and bicarbonates are present, then what we can call it as? We can call that hardness as permanent hardness of water. Now you will say, if we boil this water, then what will happen? You are not able to remove these salts. After boiling also, they do not get converted into insoluble form. Okay, so that's why these salts are not removed by mere boiling process. So I have written here definition. Hardness in water which is not removed by boiling process is known as permanent hardness. I hope I am clear with this. Now let me take some examples. So if I say sulfate, I can take sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate. If I say chloride, calcium chloride and magnesium chloride. If I say nitrate, so calcium nitrate and magnesium nitrate. If you can just remember only these six salts, it is sufficient. Okay, so these are all the salts responsible for permanent hardness of water. तो अभी क्या प्रॉब्लम है, हमें इसमें क्या सॉल्यूशन क्या है कि ये सॉल्ट कैसे निकलेंगे अब? तो फॉर दैट देयर इज अ टेक्नोलॉजी टेक्निक्स for removal of this permanent hardness causing salts. So I can say that total hardness in water is due to is a combination of temporary hardness plus permanent hardness. Okay, temporary hardness is also called as carbonate hardness, and permanent hardness is also called as non-carbonate hardness. I hope I am clear with this. Do you want me to repeat somewhere? See what I did, depending upon the nature of salt present in the water, there are two types of hardness. One is called as temporary hardness and the second one is called as permanent hardness. बराबर है ना? तो temporary hardness क्या है? Hardness due to carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium. ओके, ये सॉल्ट के वजह से जो हार्डनेस आता है उसको हम बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस. बराबर है? तो एग्जाम्पल कौन सा लिया हमने? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. तो ये जो पूरे 4 सॉल्ट्स आपको याद रखने हैं, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट सब लिख दिए ना हमने, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो ये सॉल्ट का होता क्या है, जब हम बॉइल करते हैं, these salts, those are in a soluble state, get converted into insoluble state. तो उसके वजह से ये इसका प्रेसिपिटेट बनता है आफ्टर बॉइलिंग, और हम जब इस वाटर को फिल्टर करते हैं तो पूरा सॉल्ट निकल जाता है. लेकिन परमानेंट हार्डनेस वाले जो सॉल्ट है, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये सॉल्ट नहीं निकलते. आप चाहे बॉइल कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये सॉल्ट पानी में रहते हैं और उसके वजह से हार्डनेस हमें वाटर में दिखता है. ओके, तो ये 4-5 एग्जांपल्स मैंने ले लिया और मैंने कंक्लूड कर दिया है कि टोटल हार्डनेस है, ये कॉम्बिनेशन होता है टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस का. टेम्पररी हार्डनेस को हम कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं क्योंकि कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स है ना, और परमानेंट हार्डनेस को हम नॉन कार्बोनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स है.
इसके वजह से। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज दैट अगर मैंने डिस्टिल वाटर पिया तो क्या होगा? डिस्टिल वाटर यूजफुल है मुझे मेरे लिए? कैन आई ड्रिंक एवरी डे डिस्टिल वाटर? एज आई एम केमिस्ट्री पर्सन आई कैन से दैट चलो मैं डिस्टिल वाटर ही पीऊंगी, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। एनी आंसर टू दिस क्वेश्चन? अरे जबरदस्ती नहीं बोल रहे यार तुम लोग। मयूर इज सेइंग नो। अरे ऑल आर सेइंग नो। तो मुझे क्या पीना चाहिए? मिनरल वाटर? क्या पीना चाहिए? मिनरल वाटर इज सुटेबल फॉर मी? Is there any difference between normal water? See, there is a difference between mineral water and distilled water. मिनरल वाटर में क्या होता है? सम परसेंटेज ऑफ सॉल्ट शुड बी देयर। ऐसा नहीं चलता कि प्योर जीरो सॉल्ट वाला वाटर हम नहीं पी सकते। हाँ, डू नॉट कंटेन एनी मिनरल्स, सॉल्ट्स। अगर सॉल्ट्स एंड मिनरल्स नहीं रहा तो वो वाला पानी नहीं चलेगा बेटा। वी वांट टू हैव सम क्वांटिटी बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर। तो क्वांटिटी मुझे मेजर करनी है क्या? Cause it is pure because form of water and does not contain any kind of beneficial. Yeah, correct, correct, very good. तो उससे मुझे कुछ बेनिफिट नहीं है ना, तो मैं क्यों पीऊँ वो डिस्टिल वाटर? तो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल ड्रिंक मिनरल वाटर, ओके, एंड वेयर द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट विल बी देयर बट इन अ लिमिटेड वे। तो इसका मतलब है मुझे है ना, आई नीड टू see how much is the quantity of a salt in the water. So what can I do? I need to find out some units for measurement of hardness of water, isn't it? तो कौन सा यूनिट हो सकता है? मुझे तो सॉल्ट मेजर करना है ना, कितना सॉल्ट पानी में है। तो जनरली हम क्या करते हैं, यूनिट लिखते वक्त पर लीटर ये लिखते हैं। तो मैंने पहले यूनिट जो हार्डनेस का लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे अगर दिखता है, इट इज मिलीग्राम of calcium carbonate per liter. Milligrams per liter is the first unit. Some of you have answered me as ppm, which is correct. बट मुझे एक आंसर देना पड़ेगा आपको, ppm ही क्यों, वो भी आंसर देना पड़ेगा। तो ये मैंने क्या लिख दिया कि मिलीग्राम्स ऑफ एक सॉल्ट लिया मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट लिया, मिलीग्राम्स ऑफ वो पर लीटर। लेकिन मिलीग्राम किलोग्राम क्यों नहीं लिया रे मैंने? तो बेसिकली माय क्वेश्चन इज वेरी फुलिश that salt quantity cannot be in kilogram, it should be very very less, generally in milligram. So it is milligrams of calcium carbonate present in 1 liter of water. Okay, so unit will be very very simple. Whenever milligrams of calcium carbonate is present in 1 liter of water, then I can call it as milligrams per liter. मेरा यूनिट क्या हो गया? मिलीग्राम्स पर लीटर। दूसरा जो सब बच्चे बोल रहे हैं जी जान से, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पर मुझे कुछ समझा नहीं है पार्ट्स पर मिलियन क्यों लिया है। कैसा है ना बेटा, जनरली क्या होता है कि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको पार्ट्स पर मिलियन में ले रहे हैं। अगर क्वांटिटी बहुत बड़ी होती ना, या इट इज अ रेशियो, गुड गुड, अगर क्वांटिटी ज्यादा होती ना तो हम उस ये यूनिट नहीं लेते। लेकिन ये जो हमारा वाटर इम्प्योर है सॉल्ट के वजह से, आई होप यू गॉट माई पॉइंट, वाटर इज इम्प्योर ड्यू टू डिफरेंट सॉल्ट, है ना। बेसिकली वाटर क्या हो गया, वो सॉल्ट्स के वजह पानी बन गया हार्ड। तो ये बहुत कम क्वांटिटी में सॉल्ट होता है, इसलिए हम ये यूनिट लेने वाले, पार्ट्स पर मिलियन। तो क्या है वो पार्ट्स पर मिलियन? का मतलब है मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर। ओके, 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर में कितना मिलीग्राम्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है विल बी कॉल्ड एज मिलीग्राम, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मुझे एक आज क्वेश्चन है, अगर मैंने लिखा यहाँ मिलीग्राम पर लीटर, इट इज इक्विवेलेंट टू पार्ट्स पर मिलियन। आप बोलोगे जो चाहे वो कर रहे हैं मैडम आप तो। Okay, let me go ahead and then I will explain you back.
अगर मैंने लिख दिया मिलीग्राम्स पर लीटर और किसी बच्चे ने मुझे वही आंसर ppm में लिख दिया, तो आई विल से दैट बोथ आर करेक्ट. Okay, there is a reason for showing that this is a very important point. Milligrams per liter is same as that of parts per million. This is very very important for everyone. और एक यूनिट मैंने लिख दिया, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ एंड देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. तो नेक्स्ट पॉइंट इज पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन. मिलियन बिलियन चल रहा है अभी हमारा. तो बिलियन का मतलब है 10⁹. यस, रेशियो टेकन आर सेम. ओके, नहीं नहीं बेटा, रेशियो है लेकिन फिर भी ये दोनों यूनिट तो बहुत अलग है रे. तो अगर मुझे थर्ड यूनिट क्या है मेरा, मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट, प्रेजेंट इन 10⁹ पार्ट्स ऑफ वाटर. 10⁹ पार्ट्स ऑफ वाटर, बराबर है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, पीपीबी. पीपीएम हो गया, अभी हमारा ये है पीपीबी. पर फिर भी मुझे नहीं समझा, ये मिलीग्राम्स पर लीटर सेम है, पीपीएम लिखा है, मैंने पीपीबी नहीं लिखा. ऐसा क्यों किया मैंने? कैन एनीवन अनम्यूट एंड टेल मी. और मुझे क्या सभी तरफ एक ही सॉल्ट रहेगा क्या? अभी तो मैंने पढ़ाया, 2 मिनट हो गए मैंने पढ़ाया है आपको कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट है, और यहाँ पे सिर्फ CaCO3. देखो पूरे यूनिट में मैंने क्या कर दिया है, CaCO3. शायद गलत हो गया मेरा, गलत है क्या? See, my writing is not incorrect, it is correct, because what we do for convenience, I am telling you, for convenience, what I do, I convert each and every salt, I convert each and every salt into calcium carbonate. सबको ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि हमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ सॉल्ट अदर देन कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट देन. ये क्वेश्चन मैंने पूछा है क्योंकि यूनिट में सभी तरफ कैल्शियम कार्बोनेट है. तो व्हाट इट इज, तो इफ आई हैव कैल्शियम क्लोराइड तो मेरा यूनिट क्या सेम रहने वाला है. इफ आई हैव मैग्नीशियम नाइट्रेट मेरा यूनिट सेम रहने वाला है. So my answer to this question is that if there are different salts present in the water, still I am going to convert